Namaste to everyone. Again, I am starting the APW magazine classes, and this time I will cover the APW magazine, the Open magazine, the Frontline magazine, and many others magazines which are required for the civil services and other state services examination. So, directly jump into the topic which I am gonna discuss today. Today we are discussing the volume number 61, issue number 31, APW magazine. Go to the first article. First article is about the youth protest. Rest, welcome accountability. जो दिल्ली में जो यूथ प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, जंतर मंतर प्रोटेस्ट जो है protest. What is the significance of this protest? Basically, the theme of or the objective of this protest was to seek accountability from the authority. Those who are sitting at the higher offices, they should be accountable to the people, they accountable to the parliament, and why this crisis happen? There was a claim by the NDA government that there is no resignation in this government, but this was shattered during this protest. The protest turned violent, and the government unofficially gave the reason that it may hamper the security issues, especially when our independence day is very near. So this led to the resignation of our education minister Sri Dharmendra Pradhan ji. And why this crisis happened? If the parliament has been functioning properly, the opposition has been taking calls in the parliament, this need not to be happen, because the opposition not questioning the government properly on several issues of the government. There has to be someone that need to make the accountable the authority. So there comes the CJP, a movement born by the Instagram account after the remark of the cockroach by the CGI. Though the remark was not directly to the youth, but someone who is petitioning, who is writing about the law and the judiciary, especially the people like Saurabh Das, who is being very vocal about the judicial corruption, judicial coercion, etc. That was meant for that community, but youth taken it as a whole and they started the CJP movement. Earlier the movement was at nascent stage, but many forces started joining, especially people like Sonam Wangchuk, who continued 26 days fast for the accountability
seeking from the government. So this is all about the protest, and now see what the article says. I have attached the article here so that one need not to be confused that whether this is from the APW magazine or not. So for the verifiability, I have attached this excerpt from the magazine itself. Let's discuss some of the things which indirectly not mentioned in the article. The tree of the liberty must be refreshed from the time to time with the blood of patriots and tyrants. It is its natural manure. Wrote by Thomas Jefferson, who has critical role in the foundation of the United States of America. So you can mention this in your exam about the Thomas Jefferson article. The tree of the liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. It is the natural manure, written by the Thomas Jefferson. And various aspects has been discussed, like democracy, what is the meaning of democracy, how the youth has a very pervasive and vocal role in setting the accountability mechanism to the government. अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आते हैं. बेसिकली ये GS2 का बेसिकली ये GS2 का पार्ट है. गवर्नेंस, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्राइवेसी, फेडरलिज्म. जो इवेंट्स वहाँ पे हुए हैं वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं पेपर 2 से. एक तो गवर्नेंस से रिलेट करते हैं, दूसरा फंडामेंटल राइट से, राइट टू प्राइवेसी से, तीसरा फेडरलिज्म से. GS3 से भी रिलेट करते हैं. टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था पॉलिशिंग में, एग्जाम्स स्क्रूटनी में किस तरह से कैसे एग्ज़ाम लिया जाता है. तो एक बार समरी देखते हैं हम लोग, देन आगे बढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द समरी. द एडिटोरियल एग्जामिन्स द recent widespread of the triggered repeated leaks and irregularities in the centralized national level competitive examinations, while acknowledging the education minister resignation and the government measures like establishing the technology-led reforms and enacting anti-paper leak legislations. It raises deep concern over the state punitive measures against the student protesters. ये भी बोला जा रहा है कि स्टेट जितने भी प्रोटेस्टर्स हुए थे उनके खिलाफ कुछ न कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा. तो ये एक डीप कंसर्न शोज करता है डेमोक्रेसी में. आगे देखते हैं आगे क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है. डिसेंट एज द डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट. डिसेंट वेदर द फिजिकल, डिजिटल और मेमेटिक. या तो आप फिजिकली प्रेजेंट होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर डिजिटली आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप मीम बना के प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इज़ अ वाइटल पिलर ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी. एक अच्छे डेमोक्रेसी का पहचान होता है कि वहाँ पे एक
पीपल का डिसेंट होना चाहिए कि आप जिस मुद्दे से सहमत नहीं हैं, if you are not satisfied with any point of the government or any fact of the matter of the government, you can raise your voice. That is the beauty of the democracy. Healthy democracy rather than the law and order threat. ये नहीं कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो आप उसके ऊपर लॉ एंड थ्रेट इम्पोज करना स्टार्ट कर दें. द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंगलिंग यूथ इन प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन. यूथ को जिस तरीके से प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन में डाला जा रहा है, दैट इज बाय द पुलिस ऑफिशियल्स. दिस कैन हैम्पर द पीपल्स पार्टिसिपेशन, या सिविक पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. एंड इसका जो होता है इम्प्लीकेशंस होता है, गवर्नमेंट अभी जो गवर्नमेंट रूलिंग है बीजेपी, एक बाईपोल हुआ था बिहार में भी, उसमें अब देखेंगे कि बीजेपी की कैंडिडेट जो थे वो हार गए थे, और प्रशांत किशोर जो एक कंपैरेटिवली न्यू फेसेस हैं इन द पॉलिटिक्स, बट ही इज ओल्ड इन द स्ट्रेटेजाइजिंग पॉलिटिक्स. Right to privacy and technological overreach. The state utilized mass videography and facial recognition technology to identify and build database protesters for the future action. Violation of the Puttaswamy 2017 mandate. The Supreme Court established that any state imprisonment on the privacy must satisfy threefold test. यदि आप कोई प्राइवेसी का वायोलेशन कर रहे हो किसी सिटीजन का, तो उसमें 3 फोल्ड स्टेप्स होना चाहिए. एक तो पहला कि लीगलिटी, क्या आपके पास स्टेचुअरी बेसिस है जो आप वो चीज़ अप्लाई कर रहे हो किसी इंडिविजुअल पे, एंड क्या आपके पास लेजिटिमेट स्टेट में है जो आपके जो एक्शंस है उसको जस्टिफाई कर रहा है, और इज देयर द एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट इज इन solely in the public interest or not. थर्ड है प्रोपोर्शनलिटी. प्रोपोर्शनलिटी का मतलब हुआ कि किस डिग्री का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किस डिग्री का आपने लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई किया है, और कितना इंडिविजुअल का राइट टू प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ, इंडिविजुअल राइट्स का वायलेशन हुआ है. तो वो प्रोपोर्शनलिटी ध्यान में रखना चाहिए. आप उतना ही अप्लाई कर सकते हैं जितना वायलेट होगा. मतलब मान के चलिए सिक्योरिटी है, आप एथिक्स में पढ़ते हैं ना, सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी. आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे आपके प्राइवेसी का वायोलेशन है, आपको टच किया जा रहा है, आपको चेक किया जा रहा है कम्प्लीटली, दैट इज़ द वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी. बट वहाँ पे सिक्योरिटी किया जा रहा है और लोगों का जो यहाँ पे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल भी अप्लाई हो सकता है. यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल होता है मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर. मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर. तो इस केस में यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है. यहाँ पे डिओंटोलॉजी का वायलेशन है, जहाँ पे मीन को बोला जा रहा है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. यदि हम डिओंटोलॉजी लगाएंगे तो यहाँ पे प्राइवेसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा. बट इफ़ वी अप्लाई द यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, देन द मैक्सिमम पीपल का सेफ्टी ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू एक लोगों का प्राइवेसी वायलेशन हो. इट मीन्स दैट इज. तो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आएगी यहाँ पे तो वो भी चीज़ देख सकते हैं. सेकंड है
गैप्स इन डीपी डेटा प्रोटेक्शन रूल, जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में आया था, तो उसका वायलेशंस है, क्योंकि उसमें जो गैप्स हैं वो एक्सप्लिसिटली जो पार्लियामेंट की ओवरसाइट है मैकेनिज्म जो है सर्विलांस और प्राइवेसी की ब्रीच करता है। स्ट्रक्चरल रूट ऑफ द एग्जाम लीक का कारण क्या है? बेसिकली द आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस एंड द पैनल लॉज फेल टू सॉल्व द सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स। जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है वो एग्जामिनेशन लीक का मेन कारण बताया जा रहा है यहाँ पे। तो पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट की जो ऑटोनॉमी है उसको रिस्टोर कराया जाए, और जो स्टेट स्पेसिफिक बोर्ड्स हैं उनके रिजल्ट को कंसीडर किया जाए। सेकंड, जो भी डेटा आपने स्टोर किए है थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग, फेसबुक के मेटा क्लासेस के थ्रू, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं उस पर वो इम्प्लाई नहीं हो सके। और दूसरी तर्क ये दी जाती है कि जो भी वहाँ पे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे, वहाँ पे लोग आए हुए थे, तो उस केसेस में आपके पास तो डेटा है ही, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों का डेटा आपके पास तो है ही सीसीटीएन के थ्रू, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आता है, तो उसके थ्रू आपके पास डेटा है क्रिमिनल बैकग्राउंड के अंदर, तो आप उसको यूटिलाइज करके उस पर आप इस्तेमाल कीजिए। बट जो प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं उसके डेटा को आप रिलेट कीजिए। पैरिटी इन ड्यू प्रोसेस, एंड ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाना चाहिए। स्टूडेंट प्रोटेस्टर और पॉलिटिकल कैंडिडेट जो भी फेस ट्राई किया जा रहा है उसको ड्यू प्रोसेस के फॉलो करना चाहिए। फास्ट ट्रैक एजुकेशन रिफॉर्म, अब एजुकेशन रिफॉर्म की बात हो रही है। सेकेंड आर्टिकल पे आते हैं, फास्ट ट्रैक एजुकेशन रिफॉर्म। जो यूथ प्रोटेस्ट से रिलेटेड ही है कि जो भी एजुकेशन मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन हुआ, तो उस केसेस में हमने एजुकेशन में रिफॉर्म्स क्या क्या लाया, व्हाट आर द रिफॉर्म्स वी कैरिड आउट इन द एजुकेशन सिस्टम। तो डिफरेंट थिंग से बात करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देखेंगे, चाइना के बारे में भी देखेंगे, इंडिया का भी देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये टॉपिक जो है एजुकेशन, यूपीएससी GS2 का पार्ट है, इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर सर्विसेज, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स एटसेट्रा। द एडिटोरियल क्रिटिक India's public education crisis marked by the school closure, acute teacher shortage and the narrow policy focus on the basic vocational skilling rather than the foundational human development। हम लोग जब भी बात करते हैं एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की, तो हम लोग बोलते हैं स्किलिंग कीजिए, स्किलिंग कीजिए, बट स्किलिंग ही सब कुछ नहीं है। बेसिक हमको फाउंडेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट पे आपको फोकस करना होगा। जो डेटा दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी अनचेंज्ड हैं। अ क्राइसिस इन एजुकेशन सिस्टम्स इज देयर। पब्लिक स्कूल क्लोजर इंडिकेटर्स है, मैट्रिक्स है, वैल्यू। पब्लिक स्कूल क्लोजर देखिए 2014 से लेके 2025 तक के बीच में 93,000 स्कूल क्लोजर हुआ है। सिंगल टीचर स्कूल, UTI
प्लस के सर्वे के अनुसार 1,08,43 जो है सिंगल स्कूल टीचर्स वाले स्कूल्स हैं। वैकेंट स्कूल टीचर्स पोजीशन में 10 लाख वैकेंसी अभी भी है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एजेस 15 से 25 के बीच में 40% है। अब मेंस में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? एजुकेशन वर्सेस ट्रांजिएंट स्किलिंग इन एआई एरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत सारा काम ह्यूमन का अपने अंदर ले रहा है, जैसे कि ऑटोमेटिक रूटीन फिजिकल एंड कॉग्निटिव टास्क हो गया। फ्रेमिंग एजुकेशन प्योरली एज अ मार्केट ओरिएंटेड वोकेशनल स्किलिंग इज शॉर्ट साइटेड। क्योंकि देखिए एआई का यूज़ बढ़ने ही वाला है, तो हम डायरेक्टली एजुकेशन को स्किलिंग से सिर्फ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वेरियस स्किल्स जो है आज ह्यूमन एक्वायर कर रहा है वो कल को एआई करेगा, तो फिर तो जॉब लॉसेस होगी। तो हम क्या कर सकते हैं उसके एवज में? ट्रू एजुकेशन मस्ट कल्टिवेट द ह्यूमन एबिलिटी टू क्रिटिकल इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, साइंटिफिक टेम्पर्स एंड करेक्टर। ये चीज़ें जब आपके पास रहेगी तो एक चीज़ है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, आपके पास जब अच्छी जानकारी लेने की, अच्छे डिस्कशन करने की एबिलिटी रहेगी, अच्छा साइंटिफिक सोच रहेगा, तो आप इनोवेशन करेंगे। इन वेरियस स्टेजेस में इनोवेशंस हुआ है देश में, विदेशों में भी, तब आज जाके हम लोग इतने टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेसिव हैं कि आज मैं सिर्फ वीडियो डाल के आपको रीच आउट कर सकता हूँ। एक टेक्नोलॉजिकल कंपैरिजन किया गया इंडिया और चाइना में। इंडिया अकाउंट्स फॉर 3% ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग आउटपुट वाइल चाइना 30%। इंडिया जो 3% ग्लोबल मार्केट आउटपुट है, जबकि चाइना का 30% है। डाइवर्जेंस कहाँ से आया? तो हाई क्वालिटी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय चाइना इन बेसिक एजुकेशन। जो बेसिक एजुकेशन है उसमें हाई क्वालिटी पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया गया एंड टेक्निकल ट्रेनिंग किया गया। फिर फाउंडेशनल R&D पे भी फोकस किया गया। ग्रास रूट रियलिटी क्या है कि जेन अल्फा जैसे जेन जी का प्रोटेस्ट हुआ, फिर जेन अल्फा का प्रोटेस्ट हो रहा है स्कूलों में, जो ये हाईलाइट कर रहा है कि देयर आर प्रॉब्लम्स इन द एजुकेशन सिस्टम्स। सिटीजन्स इन द रूरल एरिया एक्टिवली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द टीचर्स। और एक चीज़ मेंशन किया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा एक चीज़ बोला गया था, जब भी एजुकेशन की बात आएगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम जोरों शोरों से लिया जाएगा, क्योंकि ही हैज़ एन इमेंस रोल इन द इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। Urged the university student to take active participation in the academic governance and demanded a curriculum rich in foundational philosophy and critical thinking to build intellectual character and overcome systemic social deprivation। तो ये चीज़ें हैं। अब हम लोग टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं। The editorial against any runway increases in parliament strength। This editorial discusses कि how जो भी सीट इंक्रीज होगा उससे अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी इन पार्लियामेंट। जो सीट इंक्रीज होंगे उसके अगेंस्ट में आर्टिकल दिया गया। सबसे पहले ये किस जगह से बिलोंग करता है, किस पार्ट ऑफ सिलेबस से बिलोंग करता है ये आर्टिकल? ये पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शनिंग कंडक्ट एंड बिजनेसेस डिलिमिटेशंस एटसेट्रा से बिलोंग करता है, GS2 का पार्ट है।
इशू क्या है, कोर इशूज और समरी क्या है। अहेड ऑफ द अपकमिंग डिलिमिटेशन एक्सरसाइज and demographic data, proposals have been surfaced to expand Lok Sabha from 543 to 800 सीट या फिर 800 प्लस सीट। The editorial argues against an unrestrained increase, advocating for cap. एडिटोरियल बोलता है कि 650 पे आप कैप लगाइए जिससे कि एफिकेसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो। जो भी आर्गुमेंट दे रहे हैं 650 वाला, इसका बेसिस क्या है। एक तो टाइम फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। क्या किस प्रकार का टाइम फ्रेगमेंटेशन होगा कि फाइनाइट डिबेट टाइम स्प्लिट अक्रॉस, जो टाइम मिलेगा एमपीज को बोलने का वो 800 एमपीज में डिवाइड होगा, तो कुछ ही सेकंड मिलेंगे बोलने के लिए, जिससे कि वो एज अ वोटिंग ऑटोमेटन्स के रूप में सिर्फ एक्ट करेंगे। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। जब डिस्कशंस नहीं हो पाएगा लेजिस्लेटिव के बीच में तो एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, डायरेक्टली पास कर देंगे लॉ। A bloated, fragmented House struggles to hold the executive accountable, enabling easy passage of legislation without the scrutiny. जो स्क्रूटनी होती है गवर्नमेंट की वो नहीं हो पाएगी अच्छे तरीके से। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री रोल। पार्लियामेंट सेट्स मैक्रो लेवल नेशनल पॉलिसीज, जो भी नेशनल पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसीज है, वो पार्लियामेंट सेट करती है, जबकि लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर मेंट फॉर सेकेंड एंड थर्ड टायर गवर्नमेंट। स्टेट असेंबली, पंचायत, यूएलबी एटसेट्रा। कंपैरेटिव मॉडल्स दिया गया है आर्टिकल में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कैप किया है हाउस रिप्रेजेंटेटिव 435 सीट्स। 1929 में यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि 435 सीट कैप है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। हालांकि 3 टाइम्स पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है 1929 से अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स में। United Kingdom has 650 MPs for 7 crore people. UK में 650 MPs हैं। Lacks federal structure. So that was that article. Again next article है I can't breathe, जो हेनरी नेवर्क है इसका मर्डर कर दिया गया था इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में दिसंबर में। तो बेसिकली ये आर्टिकल है, रेसिज्म की कहानी है। that exists in the United States society or white society चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखते हैं ये किस पार्ट से लिया गया सिलेबस से। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, GS3 इम्प्लीमेंट। ओके, हम लग रहा है
गलत आर्टिकल तो नहीं पढ़ रहे हैं? ओके, ये दूसरा आर्टिकल है, लेबर कोड वाले आर्टिकल है, इसका आर्टिकल नीचे है शायद। चलो देख लेते हैं। जीएस के किस पार्ट से लिया गया? सोशल इश्यूज के पार्ट से लिया गया, रेसिज्म, कम्युनलिज्म। पेपर 2 से लिया गया, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन डायस्पोरा, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। द कोर इशू क्या है? द आर्टिकल एनालाइजेस द गवर्नमेंट पॉलिटिकल आफ्टरमैथ of December 2025, a murder of 18-year-old student Henry Nowak in Southampton, UK, by Vikram Singh Digwa and Amritdhari Sikh carrying a kirpan. It highlights how far right domestic factions and the external geopolitical actor weaponized the incident to push anti-immigrant narrative. अमेरिका इफेक्ट की एनालिटिकल पोल्स फोर्स मीन्स क्या है? द अमेरिका इफेक्ट इन ग्लोबल डिस्कोर्स, यूएस पॉलिटिकल रेटरिक एंड द कल्चरल मूवमेंट एक्सर्ट disproportionate hegemony over global socio-political debate. When the US officialdom weighs in on foreign domestic incident, localized crimes are instantly elevated to the globalized civilizational crisis. Right-wing weaponization and the two-tier policing narrative. Far-right political actors like example Reform UK claimed British law enforcement practices anti-white racism and two-tier policing. Empirical Home Office statistics refute this narrative. Black and the minority individual in UK remains up to 9 times more likely to be stopped and searched. Significantly more likely to face police restraint fatalities. Cultural and legal nuances of Kirpan. The UK Offensive Weapon Act maintains the explicit exemption allowing the observant Sikhs to carry out the Kirpan as a core religious mandate, symbolizing the honor, grace and the vulnerable. Judicial sentencing claimed that the carrying a kirpan is a religious obligation, not an inherent offensive intent. स्पेशल इश्यूज क्या क्या है? मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है। एक आर्टिकल ऊपर बच गया था, लेट्स गो टू दैट आर्टिकल फर्स्ट। लेबर कोड से रिलेटेड है। लेबर कोड criminalization of collective actions of workers protest. GS2 के पार्ट से लिया गया है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, इंटरवेंशन क्या है। GS3 में इम्प्लीमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर रिफॉर्म्स गिग इकोनॉमी से रिलेटेड है। कोर इशू क्या क्या है? यूजिंग द अप्रैल 2026 इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट इन द नोएडा ग्रेटर नोएडा बेल्ट as a case study. The article analyzes how the consolidation of 29 central labor laws into the 4 labor code has structurally weakened workers' collective bargaining right and proceduralized the criminalization of strike. आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसको क्रिमिनलाइज कर दे रहा है। 4 लेबर कोड कौन कौन सा है? एक तो देखिए कोड ऑन वेजेस है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2020 का, फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन 2020 में आया था। वेजेस 2019 में एक ही कोड 2019 में आया, बाकी सारे कोड
20 में आया। एंड ये क्वेश्चन CAPF में भी एक बार आया था, 25 के CAPF में क्वेश्चन आया था, कोड ऑन वेजेस कब आया था। की एनालिटिकल पॉइंट्स फॉर मेंस, देखिए ट्रिगर एंड रिलेटिव डिप्रीवेशन थियोरी। रिलेटिव डिप्रीवेशंस क्या है, रुंसीमैन की थियोरी है। अनरेस्ट occurs when the group compare their condition to peer reference group rather than absolute metrics। जब अपने आप को कंपैरिजन करो किसी चीज़ से, जैसे मान के चलिए एक ये है, एक ये है, ये किसी कंपनी में काम करता है, ये किसी फैक्ट्री में काम करता है। अब ये कंपैरिजन कर रहा है इससे अपने आप को, तो यहाँ पे देख रहा है ग्रेटर ऑटोनॉमी है, सैलरी भी अच्छी खासी है, आप राइट टू स्ट्राइक्स भी कर सकते हो आपको यदि दिक्कत हो तो। यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है, आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है चीज़ें। तो ये रिलेटिव डेप्रिवेशन का थियरी यहाँ पे काम कर रहा है। नियर बाय हरियाणा रेज्ड इट्स मिनिमम वेजेस फॉर अनस्किल्ड लेबर बाय 35%। जो अनस्किल्ड लेबर है उसका वेजेस जो है 14,000 से बढ़ के 19,000 कर दिया गया है। वाइल यूपी वर्कर्स इन सेम नेशनल कैपिटल 11,000 से 13,000 फॉर आइडेंटिकल इंडस्ट्रियल वर्क। ये कंपैरिजन है यूपी और हरियाणा के बीच में। प्रोसीजरल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव एक्शन, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 क्या करता है, मैंडेट 14 डे एडवांस नोटिस फॉर द स्ट्राइक्स एंड पार। बोला गया है कि यदि आप स्ट्राइक्स करना चाहते हैं तो 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा आपको स्ट्राइक करने के लिए ड्यूरिंग द कंसिलिएशन अक्रॉस द वर्चुअली एंड ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। स्पॉन्टेनियस और अनअनाउंस्ड स्ट्राइक्स आर रेंडर्ड स्टैट्यूटरी इलीगल स्ट्राइक्स। आप जो भी स्ट्राइक्स अनअनाउंस्ड करेंगे या फिर आपने नहीं बताया अथॉरिटीज़ को तो उसको इलीगल स्ट्राइक्स माना जाएगा। एक्सपोजिंग द यूनियन ऑफ मेंबर टू सेवरल फाइन्स, तो उसमें सेवरल फाइन्स भी लग सकते हैं, इम्प्रिजमेंट भी हो सकते हैं, क्रिमिनल चार्जेस भी लगा सकते हैं, और प्रोसीजरल लॉ का वायोलेशंस भी है, आर्टिकल्स 163 BNS। डीपनिंग प्रिकैरिटी एंड कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन, इसके वजह से क्या हुआ कि कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन इंडिया में बढ़ गया है चीज़ें। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन इंडियाज ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज हिस्टोरिक हाई। लोअर वेज स्टेट compete in regulatory race to bottom to attract capital under the banner of ease of doing business। Unprecedented convergence of workforce, the Noida protest witnessed a tactical alliance across the industrial factory workers contract staffs। जितना भी आप देख लें, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, और भी चीज़ें हैं, जो गिग वर्कर्स हैं और अराउंड द इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, सब ने प्रोटेस्ट हेल्ड किया एंड सब के बीच में डिससेटिस्फैक्शंस हैं। ये रहे आर्टिकल रिलेटेड टू लेबर कोड। आगे चलते हैं, आई कैन ब्रीथ, ये आर्टिकल मैंने कवर कर लिया है। स्पेशल इशूज़ ओवरव्यू, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, GS3 से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। मॉनेटरी पॉलिसीज, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन फाइनेंस से रिलेटेड है। कोर मैक्रो इकोनॉमिक थीम क्या है, की मैक्रो फाइनेंशियल थीम्स एनालाइज्ड। सबसे पहले देखिए एक्सचेंज रेट डायनामिक्स क्या है, सप्लाई शॉक्स एंड सप्लाई शॉक्स। एक्सचेंज रेट डायनामिक्स क्या क्या है, एक तो एडवर्स सप्लाई शॉक है, जो पॉलिटिकल वार्स हैं, एनर्जी प्रेजेंट, सेंट्रल बैंक्स जो है ग्रोथ
सेंट्रल बैंक्स का जो ग्रोथ है विद द ग्रोथ इन्फ्लेशन रेट ऑफ। फिर एक्सचेंज रेट आता है एज ए शॉक एब्जॉर्बर। टेम्पररी आरबीआई मेजर्स टू ड्रॉ कैपिटल कैन नॉट रिप्लेस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। आप जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करते हैं वो सिर्फ टेम्पररी मेजर्स से नहीं हो पाएगा, एक स्ट्रक्चरल मेजर्स लेना पड़ेगा आरबीआई को। डिकेड्स ऑफ द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो 4+-2 का जो टारगेटिंग हम लोग करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंडर आरबीआई के द्वारा 2016 से, तो ये तो दिखा दे रहा है कि लोअर हुआ है, बट जो एक्सपेक्टेशन है पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी का जो एक्सपेक्टेशन है मस्ट बी ऑपरेट थ्रू टॉलरेंस बैंड रादर देन अलर्टिंग टारगेट मिड पॉइंट। एक टॉलरेंस बैंड होना चाहिए जिसमें कि आप कर सकें। फ्लो ऑफ फंड पैटर्न, किस तरीके से फ्लो ऑफ फंड हुआ है 2011-12 से लेकर 23-24 के बीच में। पर्सनल कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग फील्ड बाय द रिटेल क्रेडिट। पर्सनल कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है रिटेल क्रेडिट के द्वारा। प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपेक्स रिमेन स्लगिश, जो प्राइवेट के द्वारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बहुत कम हुआ है कंपैरेटिवली। बैंक बैलेंस शीट डिस्पाइट क्लीन बैंक बैलेंस शीट, जबकि क्लीन बैलेंस शीट है फिर भी इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। डिपनिंग करंट अकाउंट डिफिसिट, थ्रू growth dependent on the foreign capital inflow। 4 क्या है कि AI in Indian banking। AI का यूज़ होना स्टार्ट हो गया बैंकिंग में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI का यूज़, जिससे कि जनधन, आधार, UPI सबको सॉलिड फाउंडेशन दिया गया AI के द्वारा। KYC, credit underwritings and fraud detections। key hurdles including data, क्या क्या hurdles हैं, data localizations है, algorithm bias है, and workforce impact है। Green finance and climate credit gap, high carbon bank lending continues to expand in the absolute terms remaining। Last है 3 times larger than the lower carbon credit base। Non-linear returns exist between the ESG engagement and the bank रिटर्न्स ऑन द एसेट्स। स्पेन वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपको नहीं पढ़ना है, आप इसको अवॉइड कीजिएगा। ये बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड है, आप इसको अवॉइड कीजिएगा। तो दिस वाज द आर्टिकल अबाउट इंडियाज मनी बैंकिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Insight liminal mobility post COVID-19 displacement from Northeast India। क्या हाईलाइट कर रहा है ये? सोशल पेपर 1 के सोशल डाइवर्सिटी को हाईलाइट कर रहा है, इंटरनल माइग्रेशन को हाईलाइट कर रहा है, जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी को हाईलाइट कर रहा है, रीजनल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी इन नॉर्थ ईस्ट को हाईलाइट कर रहा है। The article explores the ongoing migratory instability among youths from the northeast India. It details the transition from economic precarity during the COVID-19 lockdown in metro cities
to secondary displacement caused by the regional ethnic conflict in the back home, Manipur. Key concept for mains: crisis return migration, sudden unorganized mass movement triggered by the catastrophic economic disruptions and the urban isolation during the public emergencies. Liminalities क्या है? State of the perpetual displacements and precarious where the migrants find neither long-term social economic security in metropolitan centers due to informal job precarity and the racial discrimination. एक तो नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों के लिए जॉब में सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि इनफॉर्मल जॉब्स मोस्टली मिलते हैं, फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अलग होता है, नॉट स्टेबिलिटी इन द नेटिव रीजन्स ड्यू टू द इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, इंसर्जेंसी, और अपने नेटिव प्लेस में रह नहीं सकते क्योंकि एथनिक इंसर्जेंसी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें होते हैं। फिर कुछ बुक्स दिए गए हैं, उसका रिव्यू दिया गया इसमें। द लास्ट ग्रेट प्लेग ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, नताशा सरकार द्वारा लिखा गया है। ये बुक क्या हाईलाइट करती है? एनालाइज 1890 से लेके 1930 में जो प्लेग हुए थे इंडिया में, वो कोविड-19 से कंपैरिजन किया जा रहा है। Explore the coercive nature of the colonial state, forced isolation, military enforcement, sanitary segregation versus public resistance. Highlights the neglect, rural impact, especially rural Punjab, and how sanitization policies enforced urban caste and racial peripherality. एवरीडे यूटोपिया एक अलग बुक है, क्रिस्टन आर घोटसे। ये एग्जामिन करता है 2000 years of the communal living and shared child care and cooperative housing experiment. Reclaims utopia not as impossible dreams but as everyday practical intervention in domestic lives to redistribute care burdens, overcomes gendered exhaustion and rethinks private property relations. Quick reference. देखिए जीएस पेपर 1 में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में इंटरनल माइग्रेशन इन नॉर्थ ईस्ट ये आ सकता है। जीएस पेपर 2 में पुट्टास्वामी जजमेंट आ सकता है। ये चीज़ वो जो ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा है वही चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग चॉइसेस, अनदर आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कमेंट्री ए मैन्युफैक्चरिंग चॉइसेस में एडवर्टाइजिंग एंड पॉलिटिक्स नॉलेज इन इंडियाज हेल्थ लैंडस्केप। जीएस पेपर 4 से रिलेटेड है। कॉमर्शियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड एपिस्टेमिक एथिक्स, पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस से रिलेटेड है। थोड़ा हम लोग डीप टाइप करते हैं, चलिए। द पेपर क्रिटिक्स द स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉरपोरेट मार्केटिंग ऑन द पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। जो भी कॉरपोरेट मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं उसका पब्लिक हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट होगा और क्या इम्पैक्ट होगा। Commercial determinants of health, CDOH. The author argues that health outcomes are heavily shaped by the market dynamics, ultra processed food manufacturers, alcohol conglomerates and tobacco firms use sophisticated marketing strategies
influence the public consumption pattern, institutional policies, and public knowledge. Epistemic injustice and knowledge asymmetry. Advertising in ultra processed food often leverage health washing tactics. जैसे ग्रीन वॉशिंग होता है उसी तरीके से हेल्थ वॉशिंग. Highlights isolated micronutrients, added vitamins or minerals while masking higher level of saturated fats, refined sugars and sodiums. This created a distorted knowledge architectures where the consumers possess the illusion of informed choices while being nudged towards the unhealthy consumption. Critiques of neoliberal individual responsibility. The prevailing public policies framework frequently attribute lifestyle diseases like type 2 diabetes, cardiovascular disorder, childhood obesity, personal lack of discipline. Author contend a narrative insulates food corporation from statutory ability and regulatory oversight, places burden on mitigation entirely the individual consumers. बोल रहा है कि जो बर्डन होना चाहिए कॉरपोरेट्स पे वो बर्डन इंडिविजुअल्स कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया गया है. की पॉलिसीज नोट्स एंड मेन पॉइंट्स. Front of pack labeling. Urgent need to replace confusing percentage based guidelines with clear high contrast warning labels like traffic lights or high HFSS warning badges. Statutory restrictions on child targeting marketing. Statutory bans on the broadcasting advertisement for ultra processed foods during the prime time hour and across digital channels. Targeting minors. Fiscal disincentives. Implementing a graded fat tax or a sugar sweetened beverage tax. Mapped HFSS threshold with revenue dedicated directly to the public health infrastructure. हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस. तो पेपर क्या एक्सप्लोर कर रहा है ये आर्टिकल. The paper explores the complex trade-offs facing the Reserve Bank of India when managing the external shock, such as global interest rate hike by the US Fed Reserve, geopolitical energy spikes, and the capital flight from the emerging market while attempting to maintain domestic economic growth. The impossible trinity in practices. While India maintains a managed float exchange rate and the partial capital control solves the foreign capital outflow, test the boundaries of the monetary policy's independence, exchange rate as an economic shock absorber, yield curves and domestic transmissions. Second article है evaluating India's inflation targeting framework, evidence, challenges and pathway. Author कौन है? सोमनाथ शर्मा. Core thesis क्या है? This paper provides an empirical evaluation of India's flexible inflation targeting (FIT's) frameworks 4 to 2% since 2016.
Pre-FITs versus post-FITs average, anchoring inflation expectation 7.5% 2006 से 16 के बीच में रहा, अभी 2016 से 25 के बीच में 9% रहा। एंकरिंग इन्फ्लेशन expectation substantially tightened variability, structural limitation, supply side food shock volatility. Food inflation conundrum. Food and beverages account for 45.8% of the consumer price basket. However, it has been changed recently. So reduce किया गया है because monetary policy interest adjustment curbs demands rather than supply side disruption. Erratic monsoon, supply chain bottleneck. Central bank policy rate hikes are inefficient against supplies driven food shocks. Tolerance band utilization. अब tolerance band को utilize कीजिए. RBI should utilize band flexibility rather than constantly adjusting official inflation midpoint. See, India's economy in last decade, a view of flow funds. RBI flow of funds data 2011 से लेके 2024 के बीच में linkage across the four primary sectors: household, non-financial, private consumption, the financial sectors and the government. A structural shift in household financial balance. Pre-2016 मॉडल 2016 से पहले हाई नेट हाउसहोल्ड सेविंग्स हुआ करता था, कैपिटल पूल हुआ करता था, कॉर्पोरेट कैपेक्स एंड बैंक डिपॉजिट्स होते थे, जबकि पोस्ट 2020 मॉडल डाइवर्टेड सेविंग हो गया, फाइनेंशियल एसेट्स, रियल एस्टेट्स, रिटेल क्रेडिट एक्सपेंशन हुआ है, कंजम्पशन लेड ग्रोथ हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन हुआ है। ये चीज़ें हैं। Divergence between corporate balance sheet and investment. Despite the clean of the non-performing assets under the twin balance sheet solutions and the corporate tax cut, private sector growth, fixed capitals has remained sluggish. Expansion of the unsecured retail credit. The growth in the household sector's spending has increasingly relied on retail credit expansion, personally loans, credits, etc. The real and the reasoning, from digital public infrastructure to AI in banking. जो भी चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ा उसको डिटेल में डिस्कस किया गया है कि क्या क्या सिस्टम्स में दिक्कत है, एल्गोरिथमिक बायस है, सिस्टमिक रिस्क है, मॉडल होमोजेनिटी है, क्लाइमेट फाइनेंस में क्या दिक्कत है, कोर थेसिस एंड क्वांटिटेटिव फाइंडिंग, द हाई कार्बन एक्सपोजर गैप है, नॉन लीनियर ROA है, पोस्ट स्क्रिप्ट कल्चर, लिटरेचर एंड सोशल क्रिटिक, स्पेशल सेग्रीगेशन एंड द कास्ट इन MIM's beast of burden. Spatial control as the social hierarchy. The author analyzes how rural spatial layouts maintain caste structure, physical separation of habitation area, UR versus Cherry colonies, enforces economic dependence and social segregation, labor services and the spatial invisibility. The novel depicts the lives of the hereditary services caste community whose labor is essential for agriculture and ritual practices, yet who are systematically restricted to the peripheral space. The critic highlights how modern infrastructure often reinforces rather than dismantles these historical spacious divisions. When women life freedom becomes a war slogan. Fiza Abbas.
GS2. Cooperation of the grassroots movement. Explore how organic anti-authoritarian feminist movement in the global south, Iran's Jian Azadi, are co-opted within the Western foreign policy discourse to justify coercive measures such as economic sanction, diplomatic isolation, and external interventionism. Imperial feminism. The paper critics instrumentalized the human rights where local struggles for gender justice are repurposed to serve geopolitical ends, often resulted in economic sanctions that harms the very population that claims the support. See nostalgia rebranding the subtle of erasure of the caste history. Appropriation of the subsistence food. Documents the transition of kanji, traditional fermented rice gruels from the meal with the historical poverty, manual labor, and the caste deprivation into the upscale artisanal superfood marketed in urban wellness. Erasure of the historical context. The article illustrates how commercial rebranding extract cultural artifacts from their historical material context by repackaging subsistence food, package luxury health, and structural inequalities and labor history embedded in these traditional food systems and sanitized and obscured from the public memory. जो भी हम लोगों ने हेल्थ वॉचिंग वगैरह पढ़ा ऊपर में उसी चीज़ का के बारे में दिया गया है. बस दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर्स. जो ऊपर में पढ़ा उसी को दिया गया. थैंक यू. सॉरी. थैंक यू everyone. It was a gap of more than 6 to 7th month, but a comeback is needed. That's why I started this lecture again. Please be patient and follow the lectures. There are more things to come. Thank you very much. That's it for today.